ہمارا ملک ہندوستان جو اللہ اکبر نکہتوں کا زمین ہے، نکہتوں کی زمین ہے، محبتوں کی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، ہندوستان پیار کی زمین ہے، اس سرزمین پر بھی کم نصیبی یہ ہے کہ یورپی ممالک کی وجہ سے اور مغربی تہذیب کی محبت کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان نشے کا عادی ہو رہا ہے، کبھی شراب پی کر کے وہ نشہ کر رہا ہے، کبھی ہیروئن یوز کر کے وہ نشہ کر رہا ہے، کبھی ڈرگ یوز کر کے وہ نشہ کر رہا ہے، قرض کے بھنگ کے ذریعے سے، افیون کے ذریعے سے، الگ الگ دواؤں کے ذریعے سے، الگ الگ گولیوں کے ذریعے سے وہ نشہ کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ ملک کو بچانا ہے تو قوم کو نشے سے بچانا ہوگا، اس لیے کہ جو قوم نشے کے اندر ڈوب جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نشہ انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ نشہ کرنے والے کی عقل کام نہیں کرتی، جو پی کر کے گھنٹوں پڑا رہے گا نہ وہ اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکے گا، نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کر سکے گا، نہ اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کر سکے گا، نہ بلکہ اپنے آپ کے لیے کچھ کر سکے گا۔ نشہ کرنے والا سماج پر بوجھ ہوتا ہے، نشہ کرنے والا معاشرے پر بوجھ ہوتا ہے، اور آپ کو بتاؤں نشے کی وجہ سے عقل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ اسلام آخرت پر ایمان لانے والا مذہب ہے، ہمارے پاس قوم کو بچانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی نقصانات بھی بتاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت کا جو عذاب ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان جب آخرت کا عذاب سنتا ہے تو وہ گناہ سے محفوظ ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ہر مسلمان جانتا ہے دنیا کی زندگی چند روز کی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر دنیا کے اندر گناہ کیا تو آخرت میں نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بے حیا ہو جاتا ہے، نشہ کرنے والا بے غیرت ہو جاتا ہے۔ نشے کی وجہ سے انسان کے دل میں زنا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نشے کی بنیاد پر انسان جو ہے ملت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیں ایک انسان اگر سب سے زیادہ پوری دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن تاریخ کا وہ باب بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ اللہ اکبر، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت چاہنے والا شیدائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا۔ ہم آپ کو نشے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ اس کی وجہ سنیں اور آج کے بعد عہد کریں نہ نشہ خود کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور ایسے نبی ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو کنواری مریم کی ناف سے پیدا فرمایا ہے۔ جناب عیسیٰ کی شان یہ ہے، آپ نے لوگوں کے درمیان اللہ کی دعوت پیش کی۔ حضرت عیسیٰ کا ایک ماننے والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا تھا، لیکن اس کی خرابی یہ تھی کہ وہ شراب پینے کا عادی تھا، وہ شراب سے محبت کرنے والا تھا، وہ شراب کثرت سے پیتا تھا۔ آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے جس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، سلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ اکبر، سلیب پر چڑھانے کے لیے ان لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ معلوم کرتے، ایڈریس معلوم کرتے، لیکن جناب عیسیٰ چھپ چکے تھے، آپ کہیں پر چھپے ہوئے تھے، اور آپ کے اس شیدائی کے علاوہ، آپ سے محبت کرنے والے اس ایک آدمی کے علاوہ اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے اس شرابی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد چند دن تک کہ اس کو شراب نہیں دی، اور اس کے بعد جب وہ شراب کے لیے تڑپنے لگا تو اس سے کہا گیا ہم تجھے شراب کی 2 بوتلیں دیں گے، ہم تجھے شراب کی 2 بوتلیں دیں گے، لیکن تجھے پہلے بتانا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں تاکہ ہم ان تک پہنچ سکیں۔ آپ غور فرمائیں، تاریخ کا یہ بدترین باب ہے، ایک شرابی کتنا نیچے گر سکتا ہے، ایک شرابی کس قدر بدچلن ہو سکتا ہے،
ایک نشہ کرنے والا کس قدر بے غیرت ہو سکتا ہے جب اس کو شراب نہ دی گئی اور شراب کی 2 بوتلوں کی لالچ دی گئی تو اس وقت اس نے کہا مجھے شراب کی 2 بوتلیں دے دو، میں عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دوں گا۔ 2 بوتلیں دی گئی اور اس ظالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس شرابی کی شکل پر اللہ نے شبہ ڈال دیا ان لوگوں کو کہ اس کی شکل ان کو جناب عیسیٰ کی شکل نظر آنے لگی، اور اسی کو اٹھا کر کے تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میری ملت کے نوجوانوں، ایک مسلمان پوری کائنات سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، لیکن جس کو شراب کی عادت ہو جائے وہ نبی کی جان کا سودا کرتا ہے، وہ نبی کی آبرو کا سودا کرتا ہے، وہ نبی کی عزت کا سودا کرتا ہے۔ اس لیے جس شراب نے ایک ماننے والے کو جناب عیسیٰ کے اللہ اکبر مخبر بنا دیا، اس شراب کا اسلام نے پہلے دن سے بائیکاٹ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا ہوگا اور وہ توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی حال میں اٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج ہمارے چہرے پر ایک معمولی سی فنسی نکل آئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں یہ فنسی والا چہرہ لے کر میں کسی فنکشن میں کیسے جاؤں، فنسی والا چہرہ لے کر میں دوستوں کے درمیان کیسے جاؤں۔ مجھے بتاؤ اگر اللہ اکبر ایک گھونٹ شراب کی وجہ سے اگر چہرہ سور اور بندر کی طرح قبر میں ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان نشہ کیسے کرتا ہے، نشے کا عادی کیسے بنتا ہے، یاد رکھیں پہلے انسان کبھی کبھی شراب پیتا ہے، کبھی کبھی پینے والا پھر ہمیشہ شراب کا عادی بنتا ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ اسی طرح سے کبھی کبھی شراب پی کر کے پھر ہمیشہ شراب کے شیدائی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 صدیاں پہلے آج کے حالات کو ملاحظہ کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ایک گھونٹ بھی شراب کا نہیں پی سکتے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اور توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی، اس کو اتنا پیاسا کر دیا جائے گا قیامت کے دن کہ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک رہی ہوگی، اور جب اس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹکے گی تو وہ پانی پانی چلائے گا، پانی پانی کی آواز لگائے گا۔ اس وقت فرشتے اسے جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اسے جہنمیوں کی کھوپڑی میں پیش کریں گے۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کا چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے، میں تو پانی کے لیے مرتا ہوں، میں پانی کے لیے تڑپتا ہوں اور مجھے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے نادان، کیا تو نے ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ جب کوئی ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے، جو دائمی طور پہ شراب پیتا ہوگا اس کے لیے عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے آج سونامی کی بڑی ہیبت ہے، سونامی کو مکمل طور پر اللہ اکبر لوگ بھول نہیں پا رہے ہیں۔ آج بھی ویڈیو کلپس اور اس پر لکھی جانے والی تحریریں اور اس کے مناظر انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، انسان کو بے قرار کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14.5 صدیاں پہلے یہ خبر دی تھی جس کو دنیا سونامی کہہ رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میری امت کے لوگ سمندر کے کناروں پر شراب پیئیں گے اور سمندر کے کناروں پر زنا کریں گے تو اس وقت اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ اس عذاب کا تذکرہ نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ وہ حیران ہوں گے کہ اس عذاب کو ہم کون سا نام دیں۔ آپ دیکھیں جنہوں نے اس عذاب کو سونامی کا نام دیا ہے وہ حیران تھے ہم اس عذاب کو کیا نام دیں، کون سے نام سے یاد کریں۔ سونامی نے جو تباہی مچائی ہے وہ سمندروں کے کنارے مچائی ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں جتنا شراب سمندر کے کنارے
पिया जाता है पीचेस पर और उस पिकनिक के नाम पर और अल्लाह अकबर तफरीह के नाम पर, उतना कहीं और नहीं पिया जाता। आप क्या समझते हैं अल्लाह तुम्हें नेमतें देकर सो नहीं गया, अल्लाह तुम्हें नेमतें देकर भूल नहीं गया। अल्लाह वो है जो सोने से पाक है, अल्लाह वो है जो ऊँघने से पाक है, अल्लाह वो है जो अल्लाह अकबर भूलने से पाक है। उसकी शान है, वो बड़ी शान वाला है, वो नेमत देने की ताकत रखता है तो नेमतें छीनने की भी ताकत रखता है। जिस कौम ने शराब की आदत पड़ी, जिस कौम में शराब की आदत पड़ी, उस कौम को तबाह कर दिया गया, उस कौम को बर्बाद कर दिया गया। मैं आपसे पूछता हूं, आप उठा करके देखें मुसलमानों की तारीख, तकरीबन कमोबेश 1000 साल तक के हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने हुकूमत की। कब तक? जब तक मुसलमान अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, तस्बीह और मुसल्ली और कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत किए हुए थे, किसी पे जुल्म नहीं करते थे, उस वक्त तक मुसलमान हाकिम था। जब से मुसलमानों की रातें शराब में डूबने लगी और शबाब की नजर हो गई, उस वक्त से मुसलमान जवाल पजीर हो गया, जिल्लत और रुसवाई के दहाने पर पहुंच गया। तुम्हें खबर है तुम्हारे 18-18 साल के नन्हे नन्हे बच्चे जो अभी फूल की तरह मुकम्मल खिले भी नहीं हैं, जो एक कली की हैसियत रखते हैं, वो हीरोइन यूज कर रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं। अल्लाह अकबर, सुलेसन के जरिए से, बाम के जरिए से, गोली के जरिए से मुझे बताओ, एक जवान किसी कौम का सरमाया होता है, एक जवान किसी कौम का अजीम सरमाया होता है। जिस कौम के जवान बेदार हो जाते हैं उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है, और जिस कौम के जवान अय्याश हो जाते हैं, आवारा हो जाते हैं, गुनाहगार हो जाते हैं, उस कौम को सफे हस्ती से मिटा दिया जाता है। मगरबी तहजीब ने तुम्हें शराब और शबाब के हवाले से मिटाने की कोशिश की है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तुम क्या समझते हो ये शराब तुम्हारे लिए सुकून का जरिया है, इत्मीनान का जरिया है? हरगिज नहीं। आज के मैं आपको बताऊं, डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहती है, शराब इंसान को इंस्टॉलमेंट पर तबाह करती है, शराब इंसान को किस्तों में तबाह करती है, शराब इंसान के मेदों में कैंसर पैदा करती है, शराब इंसान के फेफड़े में कैंसर पैदा करती है, शराब करने वालों, शराब पीने वालों की सांस की नालियां सुकड़ जाती है, शराब पीने वाले की अक्ल माऊफ हो जाती है, शराब पीने वाला सोचने से ताल्लुक नहीं रखता, फिक्र से ताल्लुक नहीं रखता। आप मुझे बताएं, जिसे अपना होश ना हो वो दूसरों का होश क्या करेगा, वो दूसरों का ख्याल क्या करेगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, ये हर बुराई की जड़ है। नशा उम्मुल खबाइस है, हर बुराई की जड़ है। इंसान जब नशे में आता है वो हर बुराई करता है। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे नबी के दामाद हैं, वो फरमाते हैं, एक जमाना था, एक नौजवान बड़ा खूबसूरत था, एक औरत ने उस नौजवान को देखा, उस पे फरेबता हो गई और अपनी कनीज को भेजा कि जाओ और जा करके उस नौजवान को फुसला करके लाओ, पटा करके लाओ। वो ले करके आई, दरवाजे बंद कर दिए गए, कुरान रखा गया, शराब रखा गया, एक नन्हे से बच्चे को रखा गया। उस औरत ने कहा, ए नौजवान, तू मुसलमान है, तुझे या तो कुरान को फाड़ना होगा, या इस बच्चे को कत्ल करना होगा, या मेरे साथ जिना करना होगा, या शराब पीनी होगी। तुझे इन चारों में से कोई एक काम जरूर करना है। अगर तूने मेरी बात न सुनी तो मैं चीखूंगी, मैं चिल्लाऊंगी, इतना पुकार करूंगी, इतनी आहोजारी करूंगी कि पूरे माशरे में तुझे बदनाम कर दूंगी। तू जलील हो जाएगा, तू रुस्वा हो जाएगा, तेरी इज्जत चली जाएगी। अब कोई मुसलमान कुरान तो फाड़ नहीं सकता, सच्चा मुसलमान जिना भी नहीं कर सकता, बच्चे को कत्ल करना भी बहुत बड़ा जुर्म है। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी बेगुनाह को कत्ल किया अल्लाह उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर देता है। अब न कुरान फाड़ सकता है, न जिना करना चाहता है, न बच्चे को कत्ल करना चाहता है। उसने सोचा
सबसे आसान चीज शराब पीना है। एक कटोरा उठाकर पी लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया शराब, नशा उम्मुल खबाइस है, मिफ्ताउज जुनूब है, गुनाह की कुंजी है शराब। नशा बुराइयों की मां है। अल्लाह के रसूल के इस फरमान पे उसकी तवज्जो न गई होगी। फिर क्या हुआ मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसने शराब को आसान समझा और आसान समझने के बाद कहा कि ठीक है, मैं कुरान नहीं पढ़ सकता, बच्चे को कत्ल नहीं कर सकता, ज़िना नहीं कर सकता, मुझे एक कटोरा शराब पिला दो। और उसके बाद जब शराब पिलाई गई, एक कटोरे के बाद कहा और पिलाओ, फिर दूसरा पिया, फिर कहा और पिलाओ, फिर तीसरा पिया, कहा और पिलाओ। इस तरह शराब के नशे में वो धुत हो गया, बदमस्त हो गया, ऐसा उसके अंदर गुम हुआ कि अल्लाह अकबर। फिर उसने कुरान शरीफ की औरात भी नशे में फाड़ दिए, औरत के साथ जिना भी किया, बच्चे को कत्ल भी किया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यह जुर्म उसने क्यों किया? नशे की हालत में किया। नशा इतना बदतरीन है कि इंसान के ईमान का जनाजा निकाल देता है। नशा इंसान की हया को तबाह कर देता है। नशा इंसान को रुस्वा कर देता है। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि कुरान में जो शराब हराम है वो शराब तो हम नहीं पीते, आज तो नई नई शराबें निकल गई है, शराबों के नाम अलग अलग है, क्योंकि कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, कि ऐ ईमान वालो शराब और जुए से बचो, ये गंदे और नापाक काम है। अगर तुम शराब और जुए से बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। इन शैतानी कामों से बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ये कहते हैं अंगूरी शराब हराम है, फला शराब हराम नहीं, लेकिन याद रखो जो नबी होता है वो सारे जमाने की खबर रखता है। नबी की शान ये होती है कि जो कुछ हो गया वो भी नबी जानता है, जो कुछ कयामत तक यानी दुनिया के खत्म होने तक होने वाला है वो भी नबी जानता है, दुनिया के खत्म होने के बाद क्या होगा वो भी नबी जानता है। तो हमारे रसूल सारे जमाने को देख रहे थे, इसलिए आका ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। अब आप अगर बाम से नशा करते हैं वो भी हराम है, कुत्ता गोली से नशा करते हैं वो भी हराम है, शराब से नशा करते हैं वो भी हराम है। शराब का नाम बदलने से उसकी हकीकत नहीं बदल जाती। इस पर भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू मूसा, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जिनको अल्लाह जमीन के अंदर धंसा देगा। मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी शक्लों को बदल देगा, उनके चेहरों को बदल देगा, रातों रात उनके चेहरे बदल जाएंगे, या सूअर की तरह होंगे या बंदर की तरह वो जमीन में धंसेंगे, या फिर सूअर और बंदर की तरह उनके चेहरे हो जाएंगे। हजरत अबू मूसा अशरी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिन्हें जमीन में धंसा दिया जाएगा उनका जुर्म क्या होगा? जिनके चेहरे बदल दिए जाएंगे उनका जुर्म क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कौम शराब का नाम बदल बदल कर पिएगी और गाने कसरत के साथ सुनेगी, अल्लाह या तो उनको जमीन में धंसा देगा या उनके चेहरों को तब्दील फरमा देगा। आप देखें आज डॉक्टर कह रहे हैं ना कि अल्लाह अकबर, कि शराब पीने वाला अगर 50 साल का आदमी हो तो 58 साल का नजर आता है। आपको मैं बताऊं, मेरे रसूल ने 14.5 सदियां पहले यह भी बयान कर दिया था। आका ने फरमाया शराब पीने वाले की और जिना करने वाले की उम्र को अल्लाह घटा देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमारे रसूल ने पहले ही खबर दे दी थी, दुनिया आज नशे की मुखालिफत कर रही है। अल्लाह के रसूल ने 14.5 सदियां पहले नशे की मुखालिफत फरमाई थी। नशा समाज को तबाह कर देगा, समाज को बर्बाद कर देगा। लोग बहाना करते हैं, लोग कहते हैं असल में हम थक जाते हैं तो थकन को उतारने के लिए हम शराब पीते हैं। लोग बहाना करते हैं हम बीमारी को दूर करने के लिए शराब पीते हैं। इसको भी इस्लाम ने बयान कर दिया, अल्लाह के रसूल गैब नबी ने बयान कर दिया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देहात से आ रहा
रहा हूं, हम लोग बड़े मेहनती लोग हैं और सर्द इलाके से, ठंडे इलाके से हमारा ताल्लुक है। या रसूल अल्लाह, हम लोग गेहूं की शराब बनाते हैं और हम उसको पीते हैं, हमारे माशरे के लोग पीते हैं। आका ने फरमाया क्यों पीते हो? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, थकन को दूर करने के लिए, ठंडे मौसम का मुकाबला करने के लिए हम पीते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम गेहूं की शराब बनाते हो क्या उसमें नशा होता है, अकल चली जाती है? उन्होंने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, हम वो शराब बनाते हैं उससे नशा होता है, अक्ल माऊफ हो जाती है, अक्ल मुअत्तल हो जाती है, अकल काम नहीं करती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम उसको नहीं पी सकते, हर नशावर चीज हराम है, थकन उतारने के लिए शराब नहीं पी सकते, दवा के तौर पर भी शराब नहीं पी सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया अल्लाह ने उससे शिफा को उठा लिया है। अब तुम ये बहाना नहीं कर सकते कि दवा के को शराब को दवा के तौर पर पिए, नहीं, हराम में शिफा नहीं है, शिफा तो हलाल में है, शिफा तो सुथरी चीजों में है, शिफा तो पाक चीजों में है। आप शराब को दवा के तौर पर यूज नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि जब हम लोग जो है वो टेंशन का शिकार होते हैं, जहनी तनाव का शिकार होते हैं, मिसाल के तौर पर आज कौम के बच्चे, नौजवान लड़के अफेयर के अंदर मुब्तला होते हैं, लड़कियों से मोहब्बत करते हैं शादी से पहले, लेकिन जब उसमें नाकामी होती है तो इंसान सोचता है चलो अब शराब का सहारा लेंगे। उसमें फिल्में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, शराब को आम करने में फिल्में बड़ा रोल अदा कर रही है। अगर हमारी हुकूमत हमारी इस बात को सुन ले तो हम उनको बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि काश के फिल्मों से शराब का खात्मा कर दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि फिल्में मुकम्मल बंद कर दी जाए, अल्लाह करे अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन चूंकि ये मुतालबा हमारा सुना नहीं जाएगा तो जो चीज सुनी नहीं जाएगी उसका मुतालबा हम करना ही नहीं चाहते। हम इतना चाहते हैं कि फिल्मों से शराब का खात्मा कर दिया जाए, इसलिए कि दर्जनों जवानों ने फिल्मों को देख करके शराब पीना सीखा है। वो जानते हैं मेरी पसंद के हीरो ने फला स्टाइल में शराब पिया, हम भी उसी स्टाइल में पिएंगे। उसको लड़की ने धोखा दे दिया तो वो शराबी बन गया, हम भी ऐसा करेंगे। तो इसलिए लोग टेंशन को दूर करने की नीयत से शराब पीते हैं, लोग नाकामी की बुनियाद पर शराब पीते हैं। अगर कारोबार तबाह हो जाए तो उस गम को भुलाने के लिए शराब पीते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, शराब पीने वाला या नशा करने वाला अगर यह समझता है मैं हेरोइन यूज करूंगा, ड्रग यूज करूंगा, या मैं भंग खाऊंगा या अफीम खाऊंगा या शराब पीऊंगा या बाम के जरिए नशा करूंगा या सुलेसन के जरिए नशा करूंगा या कोरेक्स और दूसरी दवाओं के जरिए नशा करूंगा तो मेरा टेंशन हल्का होगा। याद रखें ये अक्लमंदी की बात नहीं है, इसलिए कि अगर आप शराब पीते हैं तो शराब पी करके आपका टेंशन हल्का नहीं हो सकता, आपकी अकल खत्म हो जाएगी और आप उतनी देर तक के अकल खो देंगे। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपका टेंशन और बढ़ेगा, आपके टेंशन में और इजाफा होगा। इसलिए कि इंसान के जिस्म में जब शराब जाती है या नशा आवर अशिया जाती है तो वो इंसान को बेचैन करती है, बेकरार करती है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो एक घूंट शराब का पीता है 40 दिन तक के अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। अब आप कोई शराब पिए, शराब खाने से लेकर शराब पिए वो भी हराम है, और मेडिकल से कोरेक्स लेकर शराब पिए वो भी हराम है। शराब को कोरेक्स का नाम दे देना, फेंसिडिल का नाम दे देना या किसी और दवा का नाम दे देना, उससे उसकी हुर्मत खत्म नहीं हो जाती। और ये इस्लाम का कानून है कि जिसको ज्यादा पीने से नशा होता है उसका कम पीना भी हराम है। मिसाल के तौर पर अगर कोरेक्स की पूरी एक बोतल पीने से नशा होता है तो उसका एक घूंट पीना भी हराम होगा, उसको नहीं पी सकते। अगर एक घूंट आपने पिया तो 40 दिन तक अब आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर तुम टेंशन दूर करने के लिए नशा करते हो तो इस चीज को आप दिल से निकाल दो कि नशा टेंशन दूर करता है।
हरगिज नहीं। नशा टेंशन दूर नहीं कर सकता, शराब टेंशन दूर नहीं कर सकता। अगर टेंशन दूर करना है तो और दिल को सुकून चाहते हो तो कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को सुकून अता फरमाएगा, तुम्हारे दिलों को चैन अता फरमाएगा, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान अता फरमाएगा। याद रखें, हमारे मुल्क का मजदूर वो भी शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, और मुल्क का अपर क्लास का तबका भी नशा कर रहा है। वजह क्या है? वो भी बेचैन है, ये भी बेचैन है, वो भी बेकरार है, ये भी बेकरार है। मालदार भी बेचैन, मालदार भी टेंशन में, गरीब भी टेंशन में, किसान भी टेंशन में, हाकिम भी टेंशन में, जमीन पे बैठने वाला जमींदार भी टेंशन में, तख्त पे बैठने वाला ओहदेदार भी टेंशन में। टेंशन क्यों है? टेंशन क्यों है? बगैर नशे के कोई इलाज है जिससे सुकून मिल सकता है? हम आपको अभी बताएंगे। याद रखें, अगर आप अपनी दौलत के बल पर सुकून हासिल करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि दौलत की वजह से आप नरम बिस्तर खरीद सकते हैं। दौलत के बलबूते पर आप नरम बिस्तर खरीद सकते हैं, दौलत के बलबूते पर आप सुकून वाली नींद नहीं खरीद सकते। नींद दुकान पर नहीं मिलती, सुकून मार्केट में नहीं मिलता। सुकून कहां है? जो किसी पे जुल्म नहीं करता उस पे भी जुल्म नहीं किया जाता। आज हम दूसरों पे जुल्म कर रहे हैं और गुनाह करके अपने आप पर भी जुल्म कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आप नींद के लिए नशा करते हैं। अल्लाह अकबर, एक शख्स कासिद बनकर मदीने मुनव्वरा आया। उस वक्त तो फारूक आजम हुजूर अलैहिस्सलाम के दूसरे खलीफा सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का जमाना था। उस कासिद ने पूछा, मुसलमानों के अमीर का महल कहां है? तो लोगों ने कहा, हमारे अमीर का कोई महल नहीं होता, वो तो हमारी तरह सादे से मकान में रहता है। तो कहा, मुझे उससे मिलना है। तो कहा कि वो घर में नहीं होगा, दोपहर का वक्त है, वो तो अपने काम से होंगे, कहां मिलेंगे? फला बाग में। ढूंढते ढूंढते गया तो सैयदना फारूक आजम एक दरख्त के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो रहे थे और नाक से खर्राटों की आवाज आ रही थी। इतनी गहरी नींद में सो रहे थे। उसने सोचा, जिसके नाम से कैसरो किसरा के ताजदार कांपते हैं, वो इतने सुकून से सो रहा है। अगर मैंने इसको कत्ल कर दिया तो मेरे आकायाने नेमत मुझे बड़ा बड़ा इनाम देंगे। उसने तलवार उठाई, लेकिन खुदा की जो मर्जी होती है वही होता है। तलवार उठाई, फारूक आजम की आंख खुल गई। आपने देखा, पूछा क्या बात है? फौरन कहा, मैं कासिद हूं, रोम से आया हूं। आपने फरमाया, कासिद के हाथ में खत होता है, कासिद के हाथ में तलवार नहीं होती। कदम पकड़ करके माफी मांगी, खत पेश किया। आपने खत पढ़ा, फरमाया हमारे मजहब में कासिद को कत्ल करना जायज नहीं है, इसलिए तुझे माफ करता हूं। उस कासिद ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के अमीर, हमें एक बात बताओ, एक बात आप हमें बताएं कि हमारे ताजदारों को, जो कैसरो किसरा के ताजदार है, सिक्योरिटी में नींद नहीं आती और आप हाथ का तकिया लगा करके ऐसा सो रहे हैं, आपको खौफ नहीं? फारूक आजम ने कहा था, जो जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म नहीं किया जाता। आज आप जुल्म कर रहे हैं, हम जुल्म कर रहे हैं, इसलिए दिल बेकरार है, दिल बेचैन है। और उस बेकरार दिल का इलाज आप नशे में तलाश कर रहे हैं। नशा करके आपके दिल को चैन नहीं मिल सकता, आपके दिल को करार नहीं मिल सकता। आपको बताऊं, नशा करने वाला पूरे समाज पर बोझ बनता है, वो कमाता नहीं है। नशा करने वाला औलाद की नजर में गिर जाता है, बीवी उससे तलाक लेना चाहती है। आपको बताऊं, डॉक्टर हजरत मौजूद है, आपको बताएंगे, नशा करने वाला जब नशे में डूबता चला जाता है तो एक मंजिल ऐसी आती है कि वो बीवी के लायक नहीं रह जाता। वो बीवी से शर्माता है, लोगों से आंखें मिलाने में शर्माता है,
लोगों से बात करने में शर्माता है, उसका वजूद कांपता है, उसमें बुज़दिली पैदा होती है, वो बुज़दिल हो जाता है, वो बात करने के लायक नहीं रहता। तो इंसान देखते देखते जवान खिलने से पहले मुरझा जाता है, और फिर नशा एक दिन इंसान को उसकी कब्र में लेकर के चला जाता है। तो नशा करने वाले की औलाद वो भी माजूर पैदा हो सकती है। इसलिए कि साइंसदां कहते हैं कि अगर नशा करने के बाद औरत से मुलाकात की जाए तो नशे के असरात ये होंगे कि जो बच्चा पैदा होगा या तो वो बेहया पैदा होगा या तो वो माजूर पैदा होगा, वो मुकम्मल पैदा नहीं होगा। आज जो बच्चे वालिदैन के मां के पेट से माजूर पैदा हो रहे हैं, उसकी एक अहम वजह यह भी है, जो माजूर बच्चों की पैदाइश की शरह पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, उसकी वजह यह है कि नशा करके लोग वजीफे ज़ौजियत अदा करते हैं। मेरे पास इससे बड़ा हया के अल्फाज में कोई और लफ्ज ही नहीं मुझे मिला जो मैं इसको पेश कर सकूं। तो वजीफे ज़ौजियत अगर नशे की हालत में की जाए तो बच्चे माजूर होंगे, और अगर वो पूरा पूरा पैदा भी हो गया तो वो कौम के लिए नासूर होगा। इसलिए नशा करके औरतों के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा करने में नुकसान ही नुकसान है। नशा करने वाला औरत का हक अदा नहीं कर सकता, और फिर एक वक्त वो आता है, वो समाज पर बोझ बनता है, वो कर्जे करता है, कर्ज करने के बाद जब वो अदा नहीं कर पाता वो चोरी की राह पर जाता है, डकैती की राह पर जाता है। यानी नशा उम्मुल खबाइस है। नशा जो है वो मिफ्ताहु जुनूब है, गुनाहों की कुंजी है। हर गुनाह नशे के बाद पैदा होता है, हर गुनाह का जज्बा नशे के बाद पैदा होता है। इसलिए अगर हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम मिल करके इस मुल्क से नशे को खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह हमारा मुल्क सुपर पावर बनेगा, और ये मुल्क जिस एतबार से माशी तरक्की कर रहा है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में ये ख्वाजा का हिंदुस्तान एक सुपर पावर ताकत की हैसियत से लोगों के दरमियान जाहिर होगा। लेकिन अगर मुल्क से नशे का खात्मा कर दिया गया तो जो काम 50 साल के बाद होने वाला है इंशाअल्लाह वो काम 20 साल के अंदर हो जाएगा। और अगर नशा होता रहा तो नशा करने वाले काम तो करते नहीं हैं, नशा करने वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशा करने वाले बुराई करते हैं। आपको पता है बरतानिया की एक क्लब का वाकया है जिसको सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में वहां के एक नौ मुस्लिम ने बयान किया। सुन्नी दावत इस्लामी दुनिया के तकरीबन 58 मुल्कों में काम कर रही है, और सुन्नी दावत इस्लामी का हर साल इज्तिमा बरतानिया में होता है। बरतानवी हुकूमत ने हमारे अमीर को मौलाना शाकिर नूरी साहब जो हमारे उस्ताद हैं उनको अवार्ड दिया है आजाद मैदान बंबई में आकर। बरतानवी हुकूमत के सफीरों ने अवार्ड दिया है। अवार्ड काहे का दिया उन्होंने? आप ये ना समझे कि नशा और इस्लाम ये हमारा पहला प्रोग्राम है, नहीं, हमारी कोशिशें बहुत दिनों से जारी हैं। बल्कि इस महफिल में ऐसे चेहरे में उठा सकता हूं जिन्होंने हमारे इज्तिमा में नशा से तौबा की है, ज़िना से तौबा की है। मैं जानता हूं ऐसे लड़कों को, लेकिन उनको उठाकर खड़ा करना यह उनकी बेइज्जती होगी, उनकी नफ्सियात के साथ जुल्म होगा। हम इसलिए किसी का नाम ओपन नहीं करते। हमारा तरीका यह है, हम नशा करने वाले लड़कों से करीब होते हैं। हम आम लोगों को करीब होने के लिए नहीं कहते, बल्कि हम खुद करीब होते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, उनको प्यार देते हैं। बात यह है, अगर हमारे समाज में कोई गुनाह छोड़ना चाहे तो भी लोग उसको छोड़ने नहीं देते। तौबा करने वाले को इतना ताना देते हैं लोग कि वो गुनाह से न बचे और फिर वो दोबारा उसी तरफ पलट करके चला जाए। ये हालात होते हैं। इसलिए गुनाह करने वाले जो लड़के हीरोइन यूज करते हैं, ड्रग यूज करते हैं, शराब पीते हैं, मैं खुद उनको वक्त देता हूं। मैं अपने ऑफिस में, मुझे शौक नहीं है रात के 2-2 बजे तक बैठने का, लेकिन रात के 2 बजे तक बैठने का राज यही है कि अगर कोई नशे वाला आए, कोई जानी आए, तो वो तखलिये में, तन्हाई में अपना दर्द मुझे बांट सके, मुझ शेयर कर सके,
हम उसको एतमाद में लेते हैं, उसको समझाते हैं नुकसानात क्या हैं और फिर उसको तौबा कराते हैं। एक जवान को मैं जानता हूं जिसके दोस्त को एड्स हो गया और उसके बाद वो हमारे पास आया, रोने लगा। मैंने कहा क्यों रोते हो? उसने कहा जितनी मर्तबा मेरे दोस्त ने ज़िना किया उतनी मर्तबा मैंने भी किया, तो मुझे भी एड्स हो सकता है। मैंने कहा अगर तुम तौबा कर लोगे तो मैं गारंटी दूंगा तुम्हें एड्स नहीं होगा। उसने कहा तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो? मैंने कहा हां, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमा ला ज़ंबला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। हमने उसको तौबा कराई और उसके बाद उसकी मंगनी हो गई थी, वो मंगनी तोड़ने के लिए कह रहा था, शादी नहीं करता था। हमने कहा तुम्हें एड्स नहीं होगा, तुम शादी करो, मैं तुम्हारी शादी में खुद शरीक होऊंगा। पूरी टीम के साथ हम शादी में शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको 3 बच्चे हैं, लेकिन बीमारी का कोई ऐसा असर मौजूद नहीं है। हम लोगों को वक्त देते हैं, तो ये हमारा पहला प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी कोशिश का एक हिस्सा है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि बरतानवी हुकूमत ने हमारे अमीर को जो अवार्ड दिया है, ये कह करके दिया है कि हमारी पुलिस ने जो शराब और नशे को कानून बताकर रोक न सकी, मौलाना की तकरीर सुनकर हजारों लोगों ने नशे से तौबा कर ली। इसलिए मौलाना को अवार्ड देते हैं। हमारे अमीर अताए मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा शाकिर नूरी जो कई मुल्कों में तकरीरें करते हैं, उनको अवार्ड दिया गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि बरतानिया के इज्तिमा में एक नौ मुस्लिम ने एक वाकया बताया। वाकया यूं था कि एक शख्स शराब का आदी था, शराब पीते पीते उसका माश तबाह हो गया, कारोबार तबाह हो गया। जब सब तबाह हो गया तो वो कर्ज के तौर पे शराब क्लब से लेने लगा। कर्ज इतना बढ़ा कि क्लब के मैनेजर ने कह दिया कि अब हम तुम्हें शराब नहीं देंगे। तवज्जो फरमाएं, अब हम तुम्हें शराब नहीं देंगे। उसने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे पास कोई आमदनी है नहीं, प्रॉपर्टी है नहीं, अगर तुम शराब लोगे तो अदा कहां से करोगे? तो उसने कहा लेकिन मैं तो शराब के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कहा कुछ भी हो तुम जानो, हम तो शराब नहीं देंगे। तो उस नौजवान ने क्या कहा पता है? अगर मैं अपनी बहन लाकर तुम्हारी क्लब में फरोख्त कर दूं तो क्या उसके बदले कर्जा माफ कर दोगे और शराब दोगे? उसने कहा बिल्कुल देंगे। उसकी जवान बहन थी, वो अपनी बहन को क्लब में लेकर के गया और अपने कर्जे के एवज में उसको फरोख्त कर दिया और उसके एवज में शराब खरीदी। ये बरतानिया में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, हिंदुस्तान में हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान हया की जमीन है, मोहब्बतों की जमीन है, प्यार की जमीन है। इस मुल्क में ये नहीं हो सकता। इसलिए हम जान की बाजी लगाएंगे अपने मुल्क की तरक्की के लिए और कौम तक पहुंचकर लोगों को मना करेंगे। बात यह है कि लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है। अब मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं इसलिए कि हमें अपना प्रोग्राम वक्त पे खत्म करना है। क्यों? इसलिए कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो इस्लामी कवानीन को फॉलो करता है और सबसे अच्छा शहरी वो है जो मुल्क के कानून पर अमल करता है। तो हमें मुल्क के कानून पर अमल भी करना है, वक्त पर गुफ्तगू खत्म भी करना है। हालांकि इतने सारे पॉइंट्स मैं लेकर आया हूं, मैं सब पर गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूं, तो अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। हमारे नौजवानों के दिलों में एक बात बैठ गई है। बात यह है हम शराब छोड़ नहीं सकते, हम नशा छोड़ नहीं सकते, हम जो भी नशा करते नहीं छोड़ सकते। यह गलतफहमी आप दिमाग से निकाल दें। इंसान जो चाहे वो कर सकता है। इंसान को अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, इंसान को अल्लाह ने वो ताकत दी है, इंसान को अल्लाह ने वो शऊर दिया है, इंसान को अल्लाह ने वो फितरत दी है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। मिसाल, जब बच्चा पैदा होता है वो लाशऊर होता है, उसे अकल नहीं होती, वो मां का दूध पीता है और मां के दूध के अलावा कोई चीज वो नहीं पीता। अगर मां का दूध न मिले वो रोता है और इतना रोता है ऐसा लगता है कहीं ये जान ना दे दे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, मां का दूध पीने वाला वो बच्चा, अगर लोग उसको दूध पीते हुए देखें
تو یہ کہیں گے کہ یہ کبھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ماں اس کو دھیرے دھیرے اپنے دودھ سے علیحدہ کرتی ہے۔ اب آپ غور کریں، میں بے حیا بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ غور فرمائیں، ماں جب اس کو دور کرتی اپنے دودھ سے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ماں کا ممتا والا اتنا لذیذ دودھ انسان چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، تو کیا وہ شراب کا کڑوا گھونٹ نہیں چھوڑ سکتا؟ ماں کے لذیذ دودھ سے زیادہ شراب میں لذت ہے، ماں کے لذیذ دودھ سے زیادہ شراب میں پیار ہے۔ خدا کی قسم، شراب میں تو بے حیائی ہے، شراب میں تو بے تکا پن ہے، شراب میں تو کڑواہٹ ہے، شراب میں تو نقصان ہے، شراب میں تو بیماری ہے۔ ارے جو صحت دیتا ہے ماں کا دودھ، جو ہمت دیتا ہے، جو طاقت دیتا ہے، جو خون کے اندر ترقی پیدا کرتا ہے، جب وہ دودھ انسان چاہے تو چھوڑ دے تو شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اور سنو، اگر تم چاہو گے تو 1 منٹ میں شراب چھوڑ سکتے ہو، ابھی بس اس کا فیصلہ ہو جائے گا 1 منٹ میں۔ اگر یہاں کوئی موجود ہے نشہ کرنے والا، تو اس نے نشہ کب سے شروع کیا؟ 10 سال سے، 12 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے، 50، پتہ نہیں کب سے شروع کیا، لیکن بہرحال جو بھی نشہ کرتا ہے ہوش سنبھالنے کے بعد کرتا ہے، یہی ہے نا؟ نشہ آدمی کو جب سوجھ بوجھ آتی ہے تبھی وہ نشہ کرتا ہے۔ لیکن مکے میں اللہ کے رسول کی جب ولادت ہوئی تو میں نے شروع میں جو بات کہی تھی اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو جو لوگ تھے مکے میں وہ ماں کی گود میں شراب پیتے تھے، مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلاتی تھی۔ اگر کسی کو دعوت دی جاتی مکے میں اور اس میں شراب کا انتظام نہیں ہوتا تو دعوت میں آنے والا ناراض ہو کر جاتا۔ یہ کیسا بد اخلاق انسان ہے کہ اس نے ادھوری دعوت کی۔ جیسے ہم اگر دعوت کریں اور اگر صرف دال روٹی پکائیں، اس کے اندر اپنی پسند کی چیزیں نہ ہو تو ماتھا چڑھنے لگتا ہے، مہمان سوچتا ہے جب دال ہی کھلانی تھی تو بلایا کیوں؟ ارے یہ تو گھر میں بھی کھاتے ہیں، مہمان کو تو اچھا کھلانا چاہیے۔ تو ادھوری دعوت اس کو سمجھی جاتی ہے۔ اور بہترین دعوت کیا ہے؟ ہر چیز دسترخوان پر ہو، اور اسلام نے اس کے آداب بھی بتائیں۔ آقا فرماتے ہیں کوئی کسی کو دعوت دے اور اس کی پسند کی چیز کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس دعوت دینے والے کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن پسند کی چیز جائز ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جس دعوت میں شراب نہیں ہوتی ہو اس دعوت کو ناقص اور نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ شراب کے وہ اتنے عادی تھے، شراب کے وہ اتنے شیدائی تھے، شراب سے وہ اتنی محبت کرتے تھے، مگر کیا وہ آپ جانتے ہیں میرے رسول ان تک پہنچے، آقا کریم ان تک پہنچے، ان کو میرے آقا نے پیار دیا، محبت دی اور ان کو اپنے اتنے قریب کر لیا کہ پھر وہ اللہ کے رسول سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرنے لگے، مگر پھر بھی وہ شراب پیتے رہے۔ جب مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول تشریف لائے تو چونکہ شراب کے ذریعے سے مار پیٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے شراب پی، دور چلا، شاعری بھی تھی۔ چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 شینوں کو ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے، ایک شراب، ایک شباب اور ایک شاعری، ان تینوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر میں اس کا ثبوت پیش کروں تو چچا غالب کو اور اقبال کو بھی پیش کر سکتا ہوں۔ جناب غالب شراب کے عادی تھے، جناب اقبال حسن و شباب کے شیدائی تھے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن 3 شین کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ عرب والے شراب کے اتنے عاشق تھے کہ ان کے یہاں شراب کے 250 نام موجود تھے، 250 نام ان کے یہاں شراب کے موجود تھے، اور ان کا کوئی کلام ایسا نہیں تھا جس کے اندر شراب کی تعریف نہ ہو۔ وہ اتنے شیدائی تھے شراب کے، وہ اتنے عادی تھے شراب کے، لیکن جب وہ شراب کی ایک محفل انہوں نے سجائی اور شاعری شروع ہوئی تو اپنے خاندان کی بڑائی میں شعر کہنے لگے
اور دوسروں کی ہجو میں اس کی بےعزتی میں شعر پڑھنے لگے تو ہڈی تھی اونٹ کی، ایک نے اٹھا کے دوسرے کے سر پہ مار دی. کیونکہ جب شرابی مل کر کے بیٹھیں گے، شراب پینے سے پہلے محبت میں بیٹھیں گے اور شراب پینے کے بعد وہ لڑ کر کے اٹھیں گے. یہ کیفیت ہوتی ہے شرابی کی. تو ہڈی سر پہ لگی، خون نکلنے لگا. رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں سیدنا فاروق اعظم. میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مجمع میں موجود ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ عمر ابن خطاب کون ہے. وہ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ شراب کے بارے میں کوئی حتمی قطعی حکم نازل فرما دے. یعنی ہمیں بتا دے اللہ کہ شراب کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، شراب کے بارے میں رب کی مرضی کیا ہے، شراب کے بارے میں اسلام کا قانون کیا ہے، ہمیں بتا دیا جائے کہ کیا ہے. حضرت فاروق اعظم نے ادھر گزارش کی، ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی. توجہ فرمائیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اس شراب کو شیطانی عمل قرار دے دیا گیا. اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی کو بلایا کہ دیکھو شراب حرام ہو گئی ہے، جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے. لوگ محفلیں جمائے بیٹھے تھے اپنے گھروں میں، آنگنوں میں، باغوں میں. کچھ لوگ شراب کو مشکیزے سے انڈیل رہے تھے، کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، کچھ لوگ شراب کو منہ میں ڈال رہے تھے، کچھ لوگ حلق کے نیچے اتار رہے تھے. ہر جگہ کی محفل کا الگ الگ معاملہ تھا. اور وہ کیسے شرابی تھے؟ جوان ہونے کے بعد شرابی نہیں بنے تھے، ماں کی گود سے وہ شرابی بنے تھے. لیکن جب منادی آیا، اعلان کرنے والا آیا اور اس نے کہا اے لوگوں، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، آج کے بعد کوئی شراب نہیں پی سکتا. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ جو انڈیل رہا تھا جام کے اندر اس نے وہی چھوڑ دیا، جو ہاتھ میں لے کر کے منہ کے قریب کر رہا تھا اس نے وہی چھوڑ دیا، جس نے منہ میں ڈالا تھا اندر نہیں نگلا، اس نے اگل دیا. اور اس کے بعد وہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے شراب حرام ہو گئی. آقا فرماتے ہاں شراب حرام ہو گئی. تو اس دن کیا ہوا؟ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے گٹر کے اندر پانی بہتا ہے. ایک سیکنڈ میں انہوں نے شراب چھوڑا، ایک منٹ میں انہوں نے شراب چھوڑا، ایک لمحے میں انہوں نے شراب چھوڑا. تو جب آج سے 1450 سال پہلے کا مسلمان شراب چھوڑ سکتا ہے، اور پھر کتنی نفرت کی انہوں نے شراب سے، انہوں نے کس قدر نفرت کی شراب سے کہ جس برتن میں وہ شراب پیتے تھے انہوں نے اس برتن کو بھی توڑ دیا کہ جس برتن میں شراب پیا گیا اب وہ برتن بھی ہمارے گھر میں نہیں رہے گا. اور اس کے بعد انہوں نے اس برتن کا استعمال بھی بند کر دیا. اسلام میں شراب پینا حرام، شراب بیچنا حرام، شراب خریدنا حرام، شراب منگوانا حرام، شراب لانا حرام، اٹھا کر لے جانا حرام. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اسلام شراب کی کمائی کو حرام قرار دیتا ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا جو شراب کا کاروبار کرے گا اور وہ حج کو جائے گا تو ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے ایک گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ وہ شراب کی کمائی سے حج کو جا رہا ہے. اگر شراب پینے والا یا شراب بیچنے والا جس سے وہ مال کھاتا ہے اگر مسجد میں آئے نماز پڑھے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا. اتنے سخت احکامات ہیں شراب کے، نشے کے. مسلمانوں، نشہ، ہر نشہ اسلام میں حرام ہے، ہر نشہ اسلام میں حرام ہے. ایک نشہ اسلام میں جائز ہے. سارے نشہ حرام ہے، ایک نشہ اسلام میں جائز ہے. وہ نشہ اللہ کی محبت کا نشہ ہے، وہ نشہ رسول اللہ کی محبت کا نشہ ہے، وہ نشہ قرآن مقدس کی تعلیمات کا نشہ ہے، وہ نشہ نماز کی لذت کا نشہ ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے نشہ ایمان ہوتا ہے
सुराही दीन होती है, जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। नशा इस्लाम में एक ही जायज है जिसे मोहब्बत रसूल का नशा कहते हैं। हजारों की तादाद में सुन्नी दावत इस्लामी के इजलास में आने वालों, आज तुम्हें एक इनकलाब पैदा करना है, इसलिए कि मैंने अपने स्टेज से जब भी जो ऐलान किया तुमने उस पर अमल किया और उसको अमली जामा पहनाया। चाहे जो ऐलान हो, इस ऐलान को भी अपने दिल में बसा करके ले जाओ, इस ऐलान को भी अपने घरों तक लेकर के जाओ। आज के बाद ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे। मेडिकल के जो भाई दवाएं बेचते नशा आवर, मैं उनकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन उनसे इतना जरूर कहूंगा, मेरे भाई हलाल में जो बरकत है वो हराम में नहीं है। अगर तू किसी को कोरेक्स की बोतल दे रहा है चंद पैसे लेकर नशे के लिए, ऐ मेडिकल वाले मेरे भाई, काश के तू सोच लेता कि इसकी जगह अगर तेरा खुद का बेटा नशे की बोतल खरीदने के लिए आता तो क्या तू उसको वो बोतल देता? क्या तू उसको वो दवा देता? क्या तू उसको वो गोली देता? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे शहर से, हमारे मुल्क से नशे का खात्मा करें। और जो नौजवान नशा करते हैं आप उनकी सोहबत से बचें, इसलिए कि सोहबत इंसान को बनाती भी है, इंसान को बिगाड़ भी देती है। बुरों की सोहबत बुरे काम से बदतर है, अच्छों की सोहबत अच्छे काम से बेहतर है। इसलिए आप सुन्नी दावत इस्लामी के करीब आएं, ये नौजवानों की तहरीक है, तहरीक से जुड़ जाएं और इश्क़े रसूल का नशा अपने सीनों में बसा लें। मैं हमारे शहर के एसपी साहब और पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि जब हमारा दावतनामा इन लोगों तक पहुंचा कि सुन्नी पीआई डीवाईएसपी साहब, ये जब हमने दावतनामा पहुंचाया कि इस्लाम और नशे पर तकरीर होगी, तो इनके हाथ में जब दावतनामा पहुंचा तो मुझे जो बताया गया वो ये बात है कि 5 मिनट में इन्होंने फोन करके मेडिकल वालों को बुलाया हमारी दावत पर, और ये हमारे साथी बने इस काम में। मेडिकल वालों को बुलाया और बुलाकर इन्होंने मीटिंग ली कि कोई भी मेडिकल वाला नशा आवर दवा नहीं बेचेगा। ये बात बहुत अच्छी है, इस पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मंजिल में हमारा साथ दिया, हमारा ताउन किया। खड़े हो जाएं, मुख्तसर सलातो सलाम और दुआ होगी। अस्सलाम वालेकुम।